ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਨਫੁਲ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਨ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੈਂਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। Because we are a new creation in Christ. Yes. Hallelujah. 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 आओ मिलके प्रेयर करिए। मेहरबान 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 पिता, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣੇ ਹੋ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਡਮ ਇਟਰਨਲ ਹੈ, ਅਬਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋੜਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। आओ मिलके आशीषित पर्याय भजन गाइए। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। और अपने आप ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੂਬੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਆਕਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਮੰਗੀਏ। आओ मिलके गीत गाना। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वर्शिप दा फर्स्ट पार्ट इत्थे ही खत्म होंदा है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं, आज 18 अक्टूबर है, अक्टूबर महीने का तीसरा संडे, और हमें आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं हम आखिरी संडे को, तीसरे संडे को क्या करते हैं। हर महीने का जो तीसरा संडे होता है, हम जब प्रभु की इबादत के लिए इकट्ठा होते हैं, तो जहाँ हम वर्शिप करते हैं, जहाँ हम कलाम सुनते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रभु भोज भी लेते हैं, मिलके फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु भोज लेते हैं। और मेरा ईमान है बहुत सारे आप में से जो आज समय इस सभा में शामिल हैं, उन्होंने फास्टिंग भी रखा हुआ है और उन्होंने कम्युनियन का सामान भी अपने पास रखा है। जैसे कलाम ख़त्म होगा, अभी कलाम का सब वक्त है, जैसे कलाम ख़त्म होगा हम लोग मिल के कम्युनियन लेंगे। तो अगर अभी भी आपने अपने पास प्रभु भोज नहीं रखा तो प्लीज़ अपने पास रख लें, और जैसे ही कलाम ख़त्म होगा हम मिल के प्रभु भोज में शामिल होंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये हमारे लिए हुक्म था कि जब तक वो दोबारा इस धरती पर नहीं आते, हम इसी तरह प्रभु भोज में भाई बहन इकट्ठे होकर शामिल हुआ करें। और हालांकि आजकल हालात हमें इकट्ठा होने नहीं दे रहे, लेकिन हम जहाँ कहीं भी हैं ऑनलाइन मिल के हम लोग कम्युनियन ले सकते हैं, तो अपने लिए कम्युनियन रख लें। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, आइए हमेशा की तरह कुछ सेकंड्स के लिए अपने दिलों को जोड़ते हैं। जैसे प्रभु ने कहा है, खाली दिलों को लाते हैं, अपने आप को खाली करें
ताकि प्रभु अपने वचन के साथ हमें आज भरे। हालेलुया। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पे आए थे। करीब 33 ईयर्स 33 साल इस धरती पर रहे। आखिरी 3 साल उन्होंने अपनी सेवकाई की और उस सेवकाई के दौरान उन्होंने बहुत कुछ किया। ना सिर्फ मौजे किए, जैसे अंधों को आंखें दी, अंगहीनों को अंग दिए, कई मुर्दों को भी जिंदा किया, वहीं उन्होंने अपना हमें अच्छे संदेश भी दिए, हमें अच्छी शिक्षा भी दी, अच्छा कलाम भी सुनाया। लेकिन इन सब के अलावा हमेशा वो जब भी उन्हें मौका मिलता, फुर्सत मिलती या फुर्सत निकालते थे, फुर्सत निकाल के पहाड़ों पे या एकांत जगह पे चले जाते थे और वहां प्रार्थना किया करते थे। और उनके डिसाइपल ये सब कुछ देखते थे, और जब वो देखते थे तो उनका भी दिल करता था कि हमारे पास भी वो पावर हो, वो विजडम हो, वो खुशी हो जो प्रभु यीशु जी के पास है। हमारा भी इंटीमेट रिलेशनशिप अपने परमेश्वर पिता के साथ वैसा ही हो जैसे प्रभु जी का है। तो उनसे उन्होंने पूछते थे कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो प्रभु जी ने उनसे एक बात कही थी, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती की इंजील अध्याय 6 वर्ष 5 से शुरू करते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह मत करो, क्योंकि वे यहूदी आराधना स्थान में और गली के नुकड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि उन्हें तो उनका फल पहले ही मिल चुका है। तो प्रभु जी ने सिखाया कि जैसे वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसी जगह पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं जहां से लोग देख सकें, हमने वैसा नहीं करना। दूसरी बात उन्होंने कही थी वर्ष 6 में, किंतु जब तुम प्रार्थना करो, अपनी कोठरी में चले जाओ और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो। फिर तुम्हारा परम पिता जो तुम्हें छिपकर किए हुए कर्मों को देखता है, तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु जी ने कहा था कि गो इनटू योर रूम, क्लोज द डोर एंड प्रे इन प्राइवेट, ताकि परमेश्वर तो देख रहे हैं, दुनिया नहीं देख रही, लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं और इसका फल हमें जरूर देंगे। और आगे कहते हैं वर्ष 7 में, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विधर्मियों की तरह यूं ही निरर्थक बातों को बार बार मत दोहराते रहो। वे तो यह सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी। My brother and sister, another thing which he taught us was, do not keep on babbling like pagans. कहते हैं कि जैसे वो लोग जो प्रार्थना करते हैं बहुत बोलते हैं, बहुत बड़बड़ाते हैं, शायद ज्यादा बोलने से प्रभु हमारी सुन ली जाएगी, ऐसा भी नहीं करना। प्रभु जी ने हमें ये शिक्षा दी थी। आगे कहते हैं, डू नॉट बी लाइक देम, उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। आवर गॉड नोज आवर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन प्रभु जी ने हमें यह सिखाया कि जब प्रार्थना करें तो गली नुक्कड़ पर खड़े रखे होकर ही लोगों को दिखा के प्रार्थना ना करें ताकि हमें लोग देखें हम प्रार्थना कर रहे हैं, बल्कि गुप्त रूप से एकांत में करें। और जब प्रार्थना करें तो बहुत ज्यादा मत बोलें। ज्यादा बोलने से, लंबी प्रार्थना करने से अगर सोचते हैं कि हमारी ये प्रार्थना सुनी जाएगी तो हम गलत सोचते हैं। माय ब्रदर सिस्टर, इसके बाद उन्होंने एक प्रार्थना दी थी जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं। क्या कहा था प्रभु जी ने 6:9 ऑनवर्ड, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। सो प्रभु जी ने ये प्रार्थना हमें दी थी जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं। हालांकि कहना तो चाहिए डिसाइपल्स प्रेयर है, क्योंकि ये हमारे लिए थी, शागिर्दों के लिए थी। आप नोटिस किया होगा आपने कि प्रभु ने जो कुछ भी मांगा इस प्रार्थना में या हमें सिखाया किस तरह मांगना चाहिए,
उन्होंने प्लूरल में कहा है, सबके लिए मांगा। क्या कहा है कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा करो। ये नहीं कहा मैंने अपराधियों को माफ किया, मेरे अपराधों को क्षमा करो। ऐसे उन्होंने कहा हमें परीक्षा में न लाओ, ये नहीं कहा कि मुझे परीक्षा में ना लाओ। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रेयर की थी, प्रार्थना थी सबके लिए। इट वॉज ए कम्युनिटी प्रेयर, हमने मिल के करनी थी। और साथ में ये भी कहा था कि डोंट ओनली डू दिस प्रेयर, प्रेयर लाइक दिस, इस तरह प्रार्थना करो, इस तरह की प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रभु जी ने हमें सिखाया था। और हम सब जानते हैं जो प्रभु में हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अक्सर हमारी एक कंप्लेंट होती है कि बहुत सी हमारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं आया। हम आगे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, समय बिता रहे हैं, लेकिन हमें प्रार्थना के जवाब नहीं मिलते। लेकिन जब बाइबल देखते हैं तो बाइबल में प्रभु के जो अच्छे अच्छे सेवक हुए हैं, प्यारे बच्चे हुए हैं, उनकी प्रार्थनाओं के फट जवाब मिल जाते थे। तो हम सोचते हैं कि शायद वो बहुत महान थे, प्रभु के बहुत क्लोज थे, प्रभु के साथ खूब उठते बैठते थे, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। तो मन में क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसी प्रार्थना का एग्जाम्पल पवित्र बाइबल में है जो किसी आम इंसान ने की हो, जिसको कोई जानता भी ना हो, जो इतना महान भी ना हो, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी हो? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव ए गुड न्यूज। पवित्र बाइबल में एक ऐसी प्रार्थना भी है जो एक ऐसे इंसान ने प्रभु से कुछ मांगा था जो आज तक ना कभी किसी ने मांगा, ना उसके बाद किसी ने मांगा, ना प्रभु ने किसको वो प्रार्थना सुन के वो चीज दी, ना आज तक दी है, सिर्फ इस बच्चे को दी थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस इंसान के बारे में आइए देखते हैं और इसकी प्रार्थना पे आज गौर करते हैं, ताकि हम लोग सीख सकें कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो अक्सर आपको महसूस होता होगा कि प्रभु एक बात करते करते लगता है कि अचानक उस बात से हटके किसी और बात की तरफ चले गए। कुछ वर्सेस में एक बात कर रहे हैं, फिर बीच में किसी और वर्सेस में कोई और बात करने लग पड़े, जैसे वो भूल गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और वो बात करके अचानक फिर वहीं आप वापिस आ गए जहां से वो बात कर रहे थे, वहां से कंटिन्यू हो गई। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो वो जो बीच वाली बात कहना चाहते थे उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, और ऐसा ही इस प्रार्थना में है। प्रार्थना है तो है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि प्रभु कुछ कहते कहते कुछ और कह गए थे। आइए देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4, पहला इतिहास अध्याय 4। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? जो इज़राइल की 12 कौमें से उसमें से एक कौम थी जूडा की कौम, जिसे हिंदी में यहूदा कहते हैं। यहूदा की कौम के बारे में, क्लैन के बारे में, परिवार समूह के बारे में प्रभु जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वर्ष 1 में कहते हैं, यह यहूदा के पुत्रों की सूची है। वो जीनोलॉजी बता रहे हैं, वंशावली बता रहे हैं कि यहूदा के बेटे बेटियां कौन थे। वे परेस, हेस्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल थे। सेकंड वर्ष में कहते हैं, शोबाल का पुत्र राया था, राया यहत का पिता था, यहत हयूमे और लहद का पिता था। सोराई लोग हूमे और लहद के वंश से। So right now God is telling starting from verse 1, परमेश्वर यहूदा की कौम के बारे में बता रहे हैं, कौन किसका पिता था, कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बहन थी, उस बारे में कहते जा रहे हैं। और इस तरह वो 8 वर्ष तक कहते हैं। 8वें वर्ष में क्या कहते हैं? एंड कोस हु वाज द फादर ऑफ अनूब, और कोस जो अनूब और सोबेबा का पिता था। कोस अलहल परिवार समूह का भी पिता था। अलहल हारून का पुत्र था। सो ये बात कर रहे हैं, तो वंशावली बता रहे हैं। लेकिन अचानक ये 8 वर्सेस में वंशावली बताते बताते अचानक कुछ और कह जाते हैं। क्या कहते हैं? वर्स नंबर 9 में, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. कहते हैं जाबेज एक अच्छा व्यक्ति था, वो अपने भाइयों से अधिक अच्छा था। उसकी माँ ने उसका नाम जाबेज रखा था, क्योंकि वो कहती थी मैंने उस समय बहुत पीड़ा ली थी जब मैंने इसे जन्म दिया। सो इसका जाबेज माँ ने, जाबेज का नाम माँ ने जाबेज इसलिए रखा था क्योंकि जाबेज जो वर्ड है इसका अर्थ है पीड़ा। माय ब्रदर्स सिस्टर, प्रभु के वचन में जाके देखें तो उस समय के जो बच्चे थे उनका नाम एक खास चीज को दर्शाता था। उनके नाम में उनका गुण या उनका फ्यूचर
झलक रहा होता था। आपको याद होगा अब्राहम जी का एक्चुअल नाम अब्राहम था, लेकिन जब परमेश्वर पिता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं तेरे को एक बच्चे की दाद दूंगा और यू विल बी फादर ऑफ मैनी नेशंस, तेरी औलादें इतनी होंगी, तेरी जनरेशन इतनी होंगी जिस तरह आकाश पे तारे हैं। उनका नाम बदल के अब्राहम से अब्राहम कर दिया था। अब्राहम का मतलब है फादर ऑफ मैनी नेशन। इसी तरह इस माँ ने इस अपने बच्चे का नाम यावेज रखा। आज इसी की प्रार्थना हम देखने और सुनने जा रहे हैं। तो आज का जो प्रभु का संदेश हमारे लिए है उसका टाइटल है ए मॉडल प्रेयर, जावेज प्रेयर। एक आदर्श प्रार्थना, एक मॉडल प्रार्थना, एक नमूना प्रार्थना। कौन सी वाली? जावेज की प्रार्थना। आइए वर्स 10 में ये प्रार्थना है, उस प्रार्थना को देखते हैं और उसके ऊपर मनन करेंगे। जावेज ने क्या मांगा? He called on the God of Israel, और क्या मांगा? You would bless me, enlarge my territory, your hand be with me, that you would keep me from evil, and I will be free from pain. जावेज ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की, कहा मैं चाहता हूं कि तू मुझे सचमुच आशीर्वाद दे, मैं चाहता हूं कि तू मुझे अधिक भूमि दे, मेरे पास रहे और किसी को भी मुझे चोट ना पहुंचाने दे, तब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। और परमेश्वर ने एंड सो गॉड ग्रांटेड हिम व्हाट ही रिक्वेस्टेड, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जो उसने मांगा था उसे दे दिया। माय ब्रदर सिस्टर, ये दो वर्सेस हैं 9 और 10 में जाबेज की कथा या कहानी सुना के अगेन प्रभु जब वर्स 11 में आते हैं तो क्या कहते हैं? कलूब शूहा का भाई था, कलूब महीर का पिता था, महीर आशुतोष का पिता था। सो फिर वही जियोनोलॉजी या वंशावली बतानी उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन बीच की जो दो लाइनें थी, दोज वर डिवोटेड टू जावेज। माय ब्रदर सिस्टर, ये यावेज कौन था और उसने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे क्या ऐसी चीज उसमें देखी कि उसी प्रार्थना का जवाब दिया, और वो चीज उसे दी जो आज तक ना कभी किसी ने मांगी ना कभी किसी को मिली। सो माय ब्रदर सिस्टर, अगर जावेज के बारे में और पता करने की कोशिश करें तो पूरी बाइबल में उसका कहीं और जिक्र नहीं आता। यही दो ओल्ड टेस्टामेंट के सेंटेंसेस हैं जहां पे उसका जिक्र आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था कि ये दो सेंटेंस उसकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जितना कोई बहुत ज्यादा किताबें भी नहीं बता सकते। माय ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने उसे इस काबिल समझा कि उसकी प्रार्थना सुने, और उस प्रार्थना को उसी समय उन्होंने जवाब दे के यस के रूप में उसको आशीर्वाद दिया। पता नहीं लगता ये कौन था, लेकिन ऐसा लगता है चूंकि यहूदा कौम की बात हो रही है तो यह शायद यह यहूदा कौम का एक बेटा था, और शायद इसके पिता का नाम कोस था, क्योंकि वर्स 9 जो उसके बारे में लिखी गई उससे पहले कोस के बारे में आया। लेकिन बहुत से ऐसे बाइबल स्कॉलर्स हैं जो इसके बारे में और अटकलें लगाते हैं कि वो कौन था, उसके पिता का नाम क्या था। लेकिन इस समय हमारा मकसद ये देखना नहीं है, हमारा मकसद ये देखना है कि इस प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं, ऐसी क्या बात थी जो उसकी प्रार्थना सुनेगी, और ऐसी क्या चीज से उसने मांगी थी जो परमेश्वर ने उसे दी, जो आज तक कभी किसी को नहीं दी। सो आई प्रार्थना पे गौर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उसने प्रार्थना कैसे की। उसने क्या कहा? एंड जाबेज कॉल्ड ऑन द गॉड ऑफ इजराइल। उसने किससे प्रार्थना की? इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना की, किसी देवी से नहीं, किसी बाबे से नहीं, किसी टोने टवीत वाले से नहीं, किसी को नहीं प्रार्थना की, परमेश्वर को ही बात बोली। माय ब्रदर सिस्टर, मान लीजिए मैंने अपनी किसी प्यारे के लिए बहुत अच्छा एक खत लिखा है, उसको मैं एक लिफाफे में डालता हूँ और उसको मैं फिर पोस्ट कर देता हूँ विदाउट द एड्रेस। क्या उस ठिकाने पे पहुंचेगा? क्या उस मेरे प्यारे के पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एड्रेस नहीं है। पर अगर मैं एड्रेस भी लिखूं लेकिन एड्रेस मेरा सही ना हो तो क्या मेरे प्यारे के पास पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस पर एड्रेस गलत है। इसी तरह जो प्रार्थना हम करते हैं, जो उस पर एड्रेस सही नहीं होता, वो कभी नहीं पहुंचती हमारे परमेश्वर के पास। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वी नीड टू प्रे ओनली दैट गॉड हु इज द क्रिएटर गॉड, जिसने यह धरती, स्वर्ग, आसमान सब कुछ बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, उससे प्रार्थना करनी है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ने भी जब हमें लॉर्ड्स प्रेयर की तो पहला वर्ड क्या बोला था? ए हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है।
Call your heavenly Father in your personal terms. Don't pray to any vague, किसी भी अस्पष्ट या अननोन देवता को प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना करनी उस परमेश्वर से जिसके हम बेटे और बेटियां हैं। अगर उस परमेश्वर को हम अपना पिता नहीं कह सकते तो हम किसके बेटे हैं? प्रभु का वचन ये भी कहता है हम फिर शैतान के बेटे हैं। सो माय ब्रदर सिस्टर, जब हम परमेश्वर को पिता के रूप में एड्रेस करते हैं, जब हम अपनी प्रार्थना परमेश्वर के पास भेजते हैं, तो वी आर ट्रस्टिंग इन हिम एंड वी से दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। इसीलिए प्रभु के वचन में हमें सीख दी गई है। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, बी एंशियस फॉर नथिंग, किसी की भी चिंता मत करो, बट इन एवरीथिंग, लेकिन हर मामले में, हर परिस्थिति में, बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विद थैंक्सगिविंग, प्रार्थना करते हुए विनय के साथ और धन्यवाद करते हुए, लेट योर रिक्वेस्ट बी नोन टू गॉड। अपनी प्रार्थनाएं सिर्फ परमेश्वर को बताएं, किसी एमपी एमएलए को नहीं, किसी भाई या बहन को नहीं, किसी सेवक को नहीं, परमेश्वर को बताएं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, टेक टाइम टू टॉक योर इश्यूज टू गॉड एंड ही विल लिसन। सो पहला काम उसने ये किया कि अपनी प्रार्थना सही एड्रेस पे भेजी। सेकंड बात, प्रभु के वचन में लिखा है कि नाउ जाबेज वाज मोर ऑनरेबल देन हिज ब्रदर। प्रभु कहते हैं कि जाबेज एक अच्छा व्यक्ति था, वो अपने भाइयों से भी अच्छा था। परमेश्वर कहते हैं वो ऑनरेबल है। ऐसी क्या बात थी उसमें कि परमेश्वर की नजर में वो ऑनरेबल था? क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। उसने जो मांगा वो भी ऑनरेबल था और जो वो था वो भी ऑनरेबल था। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, उसने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना में दो ऐसी चीजें थी जो अक्सर हमारी प्रार्थना में नहीं होते। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जो दो खास उस प्रार्थना में गुण आपको नजर आएंगे वो ये हैं। पहला यह है कि उसकी जो प्रार्थना थी, इट वाज ए अर्नेस्ट प्रेयर, जिसे हम कहते हैं तीव्र प्रार्थना, उत्साही प्रार्थना, सिंसियर प्रार्थना। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अनलेस prayer comes out of the depth of our hearts, out of the depth of our pains, that does not become an earnest prayer. और प्रभु का वचन हमें ये बताता है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, याकूब की इंजील 5 का 16, The effective fervent prayer of a righteous man avails much. प्रभु का वचन कहते हैं धार्मिक व्यक्ति की fervent prayer शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। वो उत्साही प्रार्थना शक्तिशाली होती है। My brothers and sisters, unless our prayers are intense, zealous, sincere and intense, we won't be able to get the answers. And second बात जो थी, उसने बड़ी हलीमे से प्रार्थना की। जैसे आपने शुरू में कहा था, अपने आप को खाली करके, अपना सारा घमंड, अपना सारा जो ओहदा था उसका, वो परे करके उनके पास और उसने ये प्रार्थना की। और प्रभु का वचन इस बात की गवाही देता है, when we come humbly to him, he listens us. 1 Peter chapter 5 verse 6 और 7, पहला पत्रस अध्याय 5 वर्ष 6 और 7, Therefore humble yourself under the mighty hand of God. इसलिए परमेश्वर के महिमावान हाथ के नीचे अपने आप को नवाओ, ताकि वह उचित अवसर आने पर तुम्हें ऊंचा उठाए। कैसे करो? वर्ष 7 में लिखा है, तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। सो जब हम प्रभु के पास हम्बल होके आते हैं, दीन होके आते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना की केयर करते हैं और हमारी चिंता सुनते हैं। सो माय ब्रदर्स सिस्टर्स, सिंस ही डिड प्रेयर लाइक दिस, he was honorable in the eyes of God and his prayer was honorable in the eyes of God. हालेलुया। आइए अब देखते हैं उसने मांगा क्या और उसे मिला क्या। माय ब्रदर सिस्टर, उसने कुछ चीजें मांगी। उसने कहा, प्रभु मुझे ब्लेस करो, मेरी टेरिटरी को एनलार्ज करो, आपका हाथ मेरे सर के ऊपर हो, मुझे हर बुराई से बचा के रखो, और सबसे बड़ी बात जो मांगी थी, कीप मी फ्री फ्रॉम पेन, मुझे दर्द से दूर रखो। आज तक किसी ने ये प्रार्थना नहीं की। आज तक किसी इंसान की जिंदगी में दर्द दुख खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसकी ये बात भी सुनी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने सबसे पहले मांगा, मुझे ब्लेस करो। माय ब्रदर्स सिस्टर, परमेश्वर से किसी भी तरह की ब्लेसिंग्स मांगनी, कहने का मतलब वी वांट हिज डिवाइन फेवर, हम उनका दैविक
मेहर चाहते हैं। ये कोई गलत नहीं है, ये मांगना कोई गलत नहीं है, मांग सकते हैं हमारे ब्रदर सिस्टर। प्रभु के वचन में जाके देखें तो बहुत जगह पे लोगों ने अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ मांगा है। अगर बुक ऑफ साम में देखें तो सामिस्ट ने अपने देश इजराइल के लिए मांगा था। क्या मांगा था? वर्स साम 28 वर्स 9, भजन संहिता 28 वर्स 9, सेव योर पीपल एंड ब्लेस योर इनहेरिटेंस। हे परमेश्वर, अपने लोगों की रक्षा कर, जो तेरे हैं उनको आशीष दे, उनको मार्ग दिखा और सदा सर्वदा उनका उत्थान कर। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दो देयर इज नो हार्म आस्किंग ए फेवर फ्रॉम गॉड। सो आइए देखते हैं उसकी प्रार्थना के कुछ कंपोनेंट हैं, उसके ऊपर गौर करते हैं। पहला कंपोनेंट उसने क्या कहा था? यू वुड ब्लेस मी इंडीड एंड एनलार्ज माय टेरिटरी। तू मुझे बहुत अधिक भूमि दे। माय ब्रदर सिस्टर, जब हम कहते हैं एनलार्ज माय बॉर्डर, तो इसका मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। एक तो मटेरियल ब्लेसिंग्स बढ़े, और दूसरा जो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी मेरे प्रभाव का जो क्षेत्र है वो बढ़े। और इस तरह की बात मांगना बिब्लिकल है। माय ब्रदर सिस्टर्स, टेरिटरी का मतलब ये है कि जिस जहाँ मैं उठता हूँ बैठता हूँ, जिन लोगों में, उन लोगों में मेरा प्रभाव इस तरह बढ़े कि मैं उनके साथ प्रभु के बारे में बातें कर सकूं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु के वचन में ये लिखा है, जब तक जो हमें नहीं दिया गया उसमें हमें कोई प्रभावशाली नहीं है, तो उससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगा। गॉड विल नॉट गिव अस एनीथिंग अनलेस वी आर फेथफुल व्हाट ही हैज ऑलरेडी गिवन टू अस। माय ब्रदर सिस्टर, आपको याद होगा एक कहानी प्रभु के वचन में। प्रभु ने कहानी सुनाई थी कि एक मालिक ने अपने 3 नौकरों को बुला, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़े दिए। 5 वाले ने 5 और कमा के अपने मालिक को खुश किया, 2 वाले ने 2 और कमा के अपने मालिक को खुश किया, लेकिन 1 वाला कुछ भी नहीं कमाया और उसको परमेश्वर ने नहीं ब्लेस किया। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर्स, जब तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, जब तक जो प्रभु ने हमें काम दिया गया है, अगर उसमें हम फेथफुल नहीं है तो परमेश्वर हमें उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। माय ब्रदर सिस्टर्स, ही इंक्रीज द टेरिटरी ऑफ जाबेज बिकॉज ही न्यू कि आज शायद इसके पास 2 बीघा जमीन है, ये मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है, कल को 10 होगी तो भी मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। सो गॉड वाज 100% श्योर दैट ही विल हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड फॉर मी व्हेन आई एनलार्ज हिज टेरिटरी। दूसरी बात उसने मांगी, योर हैंड वुड बी विद मी, आपका हाथ मेरे सर पे रहे। माय ब्रदर सिस्टर्स, जब प्रभु का हाथ हमारे सर पे होता है तो वी आर अंडर हिज प्रोटेक्शन, वी आर अंडर हिज गाइडेंस। माय ब्रदर सिस्टर्स, he delivers us, he perseveres us and he helps us and he guides us। पर बहुत ही बारी हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो परमेश्वर का हाथ नहीं मांगते, उस हाथ से जो हमें मिलना है वो मांगते हैं। वी आर लुकिंग फॉर गिफ्ट्स, इसे हिंदी में कहते हैं हम दातार को नहीं मांगते, हम दातों को मांगते हैं। पर जो अच्छा बच्चा उसे पता होता है, जब दातार मेरी जिंदगी में आ गया, जब दाते देने वाला मेरी जिंदगी में आ गया, तो दाते मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। और इसलिए उसने परमेश्वर का हाथ मांगा, परमेश्वर की प्रेजेंस मांगी। उसके बाद तीसरी बात उसने बोला था दैट यू शुड कीप मी फ्रॉम इविल, और मुझे तू बुराई से बचा। माय ब्रदर सिस्टर्स, एक मिनट की गौर करें, बुराई से बचाने का कई मतलब निकल सकते हैं। पहला तो मतलब है कि मुझे बुरी बातों की तरफ मेरा ध्यान ही ना जाए, ना मैं बुरा देखूं, ना मैं बुरा सुनूं, ना मैं बुरा करूं। और बुराई का बचाने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो बुरा जो इविल है, वो शैतान, उसके वार से मुझे बचा। माय ब्रदर सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु ने भी जब हमें डिसाइपल्स प्रेयर दी थी, लॉर्ड्स प्रेयर दी थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमें रोज क्या मांगना चाहिए, और हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराई से बचाओ। हालेलुया। वी हैव टू डेली आस्क गॉड टू सेव अस फ्रॉम इविल थिंग्स एंड इविल वन। उस इविल वन से भी बचाना है और बुरी चीजों से भी बचाना है। चौथी बात उसने क्या मांगी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, he asked God something I think nobody has ever asked। उसने कहा that I will be free from pain। हालेलुया। मेरी जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पेन ना आए। माय ब्रदर सिस्टर, शायद ही प्रभु के वचन में जाके देखें, आपको कोई ऐसा बच्चा मिला होगा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं थे,
तकलीफें नहीं थी, चाहे वो डेविड हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह हो, सबकी जिंदगी में पेन्स और दुख थे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, व्हाई गॉड brings pains and problems in our lives, tests and trials in our life? Because these are the things through which he molds us. ये वो चीजें जिसके जरिए वो हमें काटते हैं, छांटते हैं और अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु की तरह बनाते हैं। But my brothers and sisters, there's only one exception in the word of God, and that is this person, Jabez. जाबेश ऐसा बच्चा था कि जिसने जब ये मांगा कि मुझे जिंदगी में कोई दुख ना हो, पेन ना हो, परमेश्वर ने उसकी बात सुनी और उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आया। My brother sister, why God answered this prayer only for this individual? मैं सोचता इसका रीजन एक ही है, वो इतना अच्छा था कि परमेश्वर को उसको काटने छाटने के लिए कोई भी दुख भेजने की जरूरत नहीं थी। काश हम प्रभु के पीछे इस तरह से चले, इस तरह उनको फॉलो करें, इस तरह उनका ओबीडियंस में रहे कि परमेश्वर को हमें किसी तरह के काटने छांटने की जरूरत ना पड़े। हमारे दुख भेज के, हमारी जिंदगी में पेन भेज के, परमेश्वर को पता था कि इस बच्चे ने मेरी बातों पे चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा, इसलिए उसकी जिंदगी में ये प्रार्थना भी सुनी। आज तक ना कभी किसी ने की, ना किसी की सुनी गई, लेकिन इस बच्चे की सुनी गई। और परमेश्वर का वचन कहता है गॉड ग्रांटेड हिम रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन हमें इस बात की गवाही देता है। क्या कहता है प्रभु का वचन? बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7, मत्ती की इंजील अध्याय 7 वर्स 7 और 8। आस्क एंड इट विल गिवन टू यू, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, सीक एंड यू विल फाइंड, ढूंढो और तुम आप पाओगे, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू, दरवाजा खड़खड़ाओ और आपके लिए खोला जाएगा। क्यों? फॉर एवरीवन हू आस्क्स रिसीव्स, वन हू सीक्स फाइंड्स। जो कोई मांगता है उसको दिया जाता है, जो कोई खटखटाता है वो पाता है, उसके दरवाजा खोला जाता है। सो माय ब्रदर सिस्टर, आवर गॉड हैज गिवन अस दिस प्रॉमिस दैट ही इज विलिंग टू हियर अस, ही इज विलिंग टू आंसर अस। हम लोग अगर उसके पास आए तो जो कुछ भी हम उससे मांगे तो हमें देते हैं। लेकिन इतनी बात हमें याद रखने की जरूरत है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि इस प्रार्थना का जवाब जिस शेप में आएगा वही मेरे लिए अच्छी होगी। हो सकता है प्रभु वो चीज ना दे जो मैं मांग रहा हूँ, या उस तरह से ना दे जिस तरह से मैं चाहता हूँ, या उस समय ना दे जिस तरह से मैं चाहता हूँ। बट ही इज ए सोर्स ऑफ एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट। प्रभु का वचन हमें ये बताता है, इसलिए जो हमें देंगे वह अच्छा देंगे। सो इसलिए हमें जब प्रार्थना करनी है तो विश्वास के साथ करनी है, बिकॉज ही नोज द बेस्ट फॉर अस। एंड इवन इफ द आंसर ऑफ माई प्रेयर इज नॉट एग्जैक्टली द सेम which I ask, not at the same time, but we should have trust that whatever God has given us is that one which is best for us. आप मुझे बताएं, हमें अपना बेस्ट हमारे लिए अच्छा है कि परमेश्वर का बेस्ट हमारे लिए अच्छा है? मैं सोचता हूँ परमेश्वर का बेस्ट हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का जो बेस्ट है वो मेरे बेस्ट से कितने हजार गुना बढ़िया होगा। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज प्रभु ये वचन सुना के इस प्रार्थना का एग्जाम्पल दे के हमसे पूछना चाहते हैं, आर यू दैट काइंड ऑफ पर्सन? क्या जो तू मेरा वचन सुन रहा है, क्या तू मेरा बेटा मेरा बेटी ऐसा है जाबेस की तरह कि मैं भी तेरी प्रार्थना सुनूं और वो चीजें दूं जो आज तक कभी किसी को नहीं दी, जैसे मैंने जाबेस को दी? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड कैन एनलार्ज आवर टेरिटरी, गॉड कैन गिव अस एनीथिंग व्हिच वी वांट, बट वी हैव टू बी अर्नेस्ट इन प्रेयर्स, वी हैव टू बी फेथफुल इन प्रेयर, we have to be honorable in the eyes of God. My brothers and sisters, जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं, प्रभु पे भरोसा रखते हैं, खुश हो और मुश्किल हो, खुशी हो, गमी हो, मुश्किल हो, आसान हो, प्रभु के साथ चलते रहते हैं, परमेश्वर उनसे खुश होते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। So my brothers and sisters, आज आप एक मिनट के अपनी जिंदगी में जाके देखें, हम सब, मैं भी और आप भी, हमारी प्रेयर लाइफ कैसी है? हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? क्या हमारा पैशन परमेश्वर के लिए बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अक्सर देखने में यही आता है कि एक कलीसिया में इकट्ठे होने वाले जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उनको एक ही कंप्लेंट आती है कि पास्टर जी, मेरे पास तो वचन पढ़ने का समय नहीं होता, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 7 बजे मुझे काम पे हाजिर होना होता है, मेरे लिए प्रार्थना करने का समय नहीं होता।
माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज परमेश्वर हमें ये बात कहने जा रहे हैं। आइए परमेश्वर की बात सुने। परमेश्वर पूछ रहे हैं हम सबसे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तूने 4 हफ्ते की छुट्टी पे किसी मुल्क में, दूर के मुल्क में जाके एज ए टूरिस्ट विजिट करना होता है, तो तू क्या करता है? सबसे पहले तू छुट्टी लेता है। उसके बाद क्या करता है? वहां जाने के लिए प्लान करता है, फ्लाइट बुक करता है। फिर क्या करता है? जिस होटल में रहना उसको बुक करता है। फिर तू क्या करता है? वहां जाके क्या क्या मैंने विजिट करना उसकी लिस्ट बनाता है। तब तू उस वेकेशन पे जा पाता है, तब उस वेकेशन का आनंद उठा पाता है। पर मान लो आप जो 4 हफ्ते की वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टी तो ले लें, लेकिन उसके बाद कोई काम ना करें, ना होटल बुक कराएं, ना फ्लाइट बुक कराएं, ना उन जगह की लिस्ट बनाएं जहां हमने विजिट करना, तो क्या होगा? एक दिन वो छुट्टी वाला दिन आ जाएगा। 4 हफ्ते की छुट्टी आज से शुरू होनी है। ना मेरे पास कोई प्लान है, ना कोई फ्लाइट बुक है, ना कोई होटल है, तो क्या होगा? मैं वहीं बैठा रहूंगा जिस जगह पे पहले बैठा था, अपने घर में रहूंगा और घर में खाली बैठ के वो 4 हफ्ते गप्पे मारते हुए, टीवी देखते हुए बिता दूंगा। और अगर मैंने प्लान किया होता तो मेरी वेकेशन इतनी बुरी ना होती। इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, यू हैव टू मेक ए प्लान, यू हैव टू फिट प्रेयर इनटू योर डेली रूटीन। अपने रोज के रूटीन में चाहे कितने बिजी ना हो, हमें प्रार्थना को पहल देनी पड़ेगी। हमारी जिंदगी की जो प्रायोरिटी होती है उसके लिए हम समय निकालते हैं, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की प्रार्थना के लिए हमारे पास वो समय नहीं होता। सो द सिंपल सजेशन फ्रॉम गॉड फॉर अस टुडे इज, टेक टाइम दिस वेरी डे, rethink your priority and fit your prayer life into it. Set a time, set a place, and read a portion of scripture before you pray before me. My brothers and sisters, कई बार हम लोगों ने अपनी जिंदगी की, मसीह जिंदगी की शुरुआत ऐसे ही की है। हम प्रार्थना में बहुत आगे थे, वचन पढ़ने में बहुत आगे थे, लेकिन धीरे धीरे पिछड़ते गए। तो अब क्या करें? हताश होने की जरूरत नहीं है। There is a mid course correction also available. जैसे हम जीपीएस पे कहीं जा रहे हो और जीपीएस पे हमने एड्रेस डाला हो, तो जीपीएस हमें पूरी वहां पे मंजिल पे पहुंचा देता है। पर मान लीजिए रास्ते में कहीं हम गलत जगह पे मुड़ गए, तो जब हम करेक्ट करते हैं तो जीपीएस हमें करेक्ट एड्रेस बता सकता है, करेक्ट डायरेक्शन दे देता है। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में प्रार्थना में कमी हो गई है, तो अभी भी हम करेक्शंस कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में प्रार्थना को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के वचन में जाके देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह गार्डन ऑफ गेथसेमनी में थे, जब उन्हें पता था कुछ ही पल के बाद वो मुझे पकड़ने आ जाएंगे, मुझे पकड़ के लेके जाएंगे और मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, और उन्होंने प्रार्थना की थी। और प्रभु का वचन कहता है, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना ऐसे बहा था जैसे लहू बहा था। इस वर्ष का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यही है कि उनकी जो प्रार्थना थी इतनी इंटेंस थी, इतनी उत्साहित थी, कि उनके जो आंसू थे वो खून की तरह लग रहे थे। दैट्स द वे टू प्रे टू गॉड। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर हम जाबेज की प्रार्थना से कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें यह सीखना चाहिए कि हमारी प्रार्थना में वो जोश हो, वो उत्साह हो, वो इंटेंसिटी हो जो जाबेज की प्रार्थना थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें प्रार्थना करनी हर समय। We have to pray hard. We have to pray deep. We have to pray with others. We have to pray alone. We have to pray because nothing else works. And we have to even pray when prayer is not working. जब प्रार्थना नहीं भी काम कर रही, तब भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। My brothers and sisters, when you are walking, talk to God. When you are driving, talk to God. When you are wake up, talk to God. जब उठें तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, जब सोएं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। And प्रभु का वचन हमारे लिए pray right now wherever you are, because prayer is the one who can change our life. प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगियां बदल सकती है, और हम परमेश्वर से वो सारी बरकतें पा सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए संभाल के रखी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जैसे आप जानते हैं
ਅੱਜ थर्ड संडे और हर महीने के तीसरे एतवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ और मेरा ईमान है कि जिस तरह ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਿਊਨਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਭੋਜ ਮਿਲ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੁਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਿਊਨਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਡਰਿੰਕ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी कि पिन है इसमें मेरी जिंदगी। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी, के पिन है इसमें मेरी जिंदगी, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी, मैं तेरा बदन क्यों न लूं नासरी। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਨ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 Corinthians chapter 11, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਨ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਰਸ 23 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, for I received from the Lord that which I have also delivered to you। ਅਪੋਸਟਲ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ and when he had given thanks he broke it। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਟੇਕ ਈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫॉर ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਖਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਡੂ ਦਿਸ ਇਨ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਆਫ ਮੀ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ, ਲੈਟਸ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਦਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Verse 25, in the same manner he also took the cup after supper। और ऐसी तरह भोजन खान तो बाद उन्होंने प्याला उठाया तो की किया? दिस कप इज द न्यू कोवेनेंट इन माई ब्लड। यह प्याला मेरे लहू नाल कीता गया एक नवा वाचा है, एक नवा करार है। दिस डू एज ऑफ्टन एज यू ड्रिंक इट इन रिमेंबरेंस ऑफ मी। कहते हैं जदों भी तुसी कदी इस नूं पीओ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। For as often as you eat this bread and drink this cup, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, you proclaim the Lord's death till he comes। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਬਲੱਡ ਹੈ
जो 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस ते अपनी जान दे के अपनी बलि दे के ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹੀ ਲਹੂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਹੂ ਦਾ ਗੀਤ, ਉਹ ਲਹੂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਵਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਲਹੂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ, ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। God bless you. We bless you in the name of the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। God bless you. God bless you.